we seen multiple consultants, we meet with multiple consultants. Every staff, each and every employees of Amritpal is very cooperative, very cooperative. We never feel they are away from us. They are providing really extreme level support. They completed A1, A2, B1, B2 with the help of Amritpal. First time, then also you have trusted us and you have hired us. दोहा में बहुत सारे कंसल्टेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने कैरियर फेयर भी हम लोगों ने देखा है। अब तक मुझे कहीं पे फील नहीं हुआ कि कहीं पे भी मुझे नेगेटिविटी दिखाई नहीं दी। एक भी पेरेंट्स का ऐसा नहीं मिला नेगेटिविटी कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते। मैम का जो पोजीशन और टॉप ऑफ द टॉप है। बिल्कुल सर। हाँ। Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Today we are in Doha, Qatar, and I'm interviewing one of our parents, Mr. Afzal Nasir sir. And the most important part of being here in Doha in Qatar is just Mr. Afzal sir, because we are very thankful to him, because from last 3 days we were in quarantine and he were helping like anything. Like we were feeling that we have some sort of family here in Doha. So sir, thank you for that. Thanks a lot. So the reason of inviting Mr. Afzal sir in this interview is his both of the sons are in Germany right now. One of them is studying student colleague and other is finishing his German language studies, and soon he will be appearing for the student colleague examinations. So for the younger son, sir has approached Amritpal Vision, and we have done all his procedures for teaching him German language, sending to Germany, getting his German student visa. And his elder son, who is in Germany, he went with other consultancy which is based here in Doha, Qatar. So we will ask him that why he has selected Amritpal Vision and why he didn't selected his previous consultancy from which his elder son went to Germany. So sir, thank you for hosting us here in Doha, Qatar. It's a proud privilege for me. Welcome sir. And really is very grateful for Amritpal Vision total team to giving me this opportunity to send my son in Germany. So it's I can say we have multiple consultant. We seen multiple consultant. We meet with multiple consultants. But what I feel that the Amritpal Vision is like a home environment. And each and every corner, every staff, each and every employees of Amritpal is very cooperative, and we never feel they are away from us. We always feel they are nearest to us. Okay. So whenever we need any assistance, they are providing really extreme level supports, and thanks to Almighty. So my son, on the time he brought it from Doha to Germany, and right now he completed C1. From the beginning A1 to C1, we are completely associated with Amritpal Vision. They completed A1, A2, B1, B2 with the help of Amritpal Vision, or especially from your side. So we cannot forget your support. Your support is really tremendous. Pleasure sir, pleasure. And hope, inshallah, it will continue till the completion of course. Definitely it will be continued. Yeah. So sir, जैसे कि आई नो दैट आपके जो बड़े बेटे हैं वो दोहा कतर के कोई लोकल कंसल्टेंसी से जर्मनी गए, और आपके जो छोटे बेटे हैं उनका स्टूडेंट वीज़ा का पूरा प्रोसीजर हमने किया है. सो आपने क्यों वही प्रीवियस कंसल्टेंसी को हायर नहीं किया? व्हाई यू हैव ऑल द वे यू हैव हायर्ड अमृतपाल विजन, हु इज़ इन इंडिया, हु इज़ not in Doha, Qatar. Like this is our first time. Then also you have trusted us and you have hired us. So हमको उसका reason पूछना है कि what was the reason? देखिए, सबसे पहले जो पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स जो सपोर्ट चाहिए, वो जब जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे है तो वो हमारे नियरेस्ट होना चाहिए, और वो मुझे पता चलना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ, हम जो अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो पैसा हम अपने बच्चों पे लगाने वाले हैं उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए,
तो वो राइट वे में जा रहा है या फिर मुझे इसके लिए और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, खास कर पेरेंट्स। लेकिन आप ऐसे कंसल्टेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, जो आपके कॉल को एड्रेस करने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा है, आपके क्वेरीज को क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो चूँकि हमारे पास और भी दूसरे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पास में फैमिली लायबिलिटीज़ भी है, उसको भी लेके चलना पड़ता है। तो अगर किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट भी मुझे है, वो इमीडिएट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो ऐसा कंसल्टेंसी जो है मुझे नहीं लगता कि आगे फर्दर सपोर्ट मिल पाएगा, अच्छा सपोर्ट। तो हम लोग फाइंडिंग कर ही रहे थे, और ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, ये पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंसल्टेंट तो चलिए जो है वो तो उनके पास इन नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, तो वो सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते और सबके साथ, लेकिन हमें चाहिए कि उनके साथ कनेक्ट रहें। हैं, हमें जो ज़रूरत है टाइम टू टाइम उनकी टीम से जो पूछते रहें या अपडेटेड रहें कि आगे का फर्दर क्या प्लानिंग है और अभी क्या चल रहा है, क्या होना है। ये पेरेंट्स को जागना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर जागते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई किसी भी कंसल्टेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। और हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड से ही ये एक्सरसाइज शुरू किया था बच्चों को, कि बच्चों को हायर एजुकेशन देना है अपने पॉकेट को देखते हुए। जाहिर सी बात है, मैं पॉकेट को देखूंगा, हर एक आदमी का अलग अलग अपना अपना रेंज है। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने जब अमृतपाल का, जो हमारी मिसेज हैं, वो सर्च कर रही थी साइट पे कि भाई एक कंसल्टेंट से हम लोगों ने भेजा है, लेकिन हमारे पास उसका, हम किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि चलो जो भी है, अब जो हमारा पहला हो गया वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें, दोहराएं। तो उसके लिए हमारा दूसरा चॉइस, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उस सेकंड ओपिनियन की वजह से हम लोग एक्सरसाइज कर ही रहे थे, तो तभी हमारी मिसेज ने आपका जो यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखा, तो उनको लगा कि शायद ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, या हम लोग राइट डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तभी हम लोगों ने एक आपके यहाँ कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो आकाश थे, आकाश, थैंक्स करूँगा मैं उनका भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। आकाश से हमारी बात हुई, फिर आकाश ने कहा कि कुणाल भी हैं, कुणाल से भी बात किया। तो मैंने उनसे जाहिर किया कि आपके जो ओनर हैं या जो डायरेक्टर हैं, तो अगर उनसे मेरी बात हो सकती है, क्योंकि मैं एक छोटा प्लेयर था, मुझे मालूम नहीं कि अमृतपाल इतने बड़े चीज़ को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि जो अमृतपाल सर हैं या जो आपके डायरेक्टर हैं या ओनर हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स सर, मैं आपसे बात कराता हूँ। अभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उसी वक्त आपको कॉल किया उन्होंने, जो वो दिन भी मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी। जो कॉल किया, फिर आप आए, और उस वक्त शायद आपका वो सेटअप चल रहा था लैब का, वो लैब का सेटअप था। तो फिर जो बात शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे लगा कि नहीं, कंसल्टेंट तो बहुत हैं, दोहा में बहुत सारे कंसल्टेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने, कैरियर फेयर भी हम लोगों ने देखा है और भी हैं, लेकिन फैक्टर जो है, सबसे मेन फैक्टर है कनेक्टिविटी। बिल्कुल सर। कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग है, तो अगर 2 पैसा अगर कहीं ज़्यादा भी लग रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं है, आपको अपडेटेड नहीं हो रहे हैं, आपको जिस मकसद के लिए आपके बच्चों को जाना चाहिए था, वो बच्चे आपके लेट हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं उनके प्रोसेस में, साल उनका निकल रहा है। तो ये मुझे लगा कि नहीं, ये अमृतपाल सर ग्रुप से अगर बात करते हैं, और अब तक वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई थी, लास्ट 1.5 साल तकरीबन होने जा रहा है तकरीबन, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो वो अब तक मुझे कहीं पे फील नहीं हुआ कि कहीं पे भी मुझे नेगेटिविटी दिखाई नहीं दी। हाँ, कि अमृतपाल रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। और इसी वजह से, चूँकि हम दोहा में काफ़ी ज़माने से हैं, तो मुझे लगा कि हमारे और भी फ्रेंड्स को उनको अप्रोच करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और हम लोगों ने मल्टीपल पेरेंट्स को ट्राई किया, बहुत बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेरेंट्स भी, एक भी पेरेंट्स का ऐसा नहीं मिला मुझे। ऑलमोस्ट मैंने 22 पेरेंट्स को अप्रोच किया दुआ से, और मुझे एक भी पेरेंट्स का ऐसा नहीं मिला नेगेटिविटी कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते, उन लोगों का रिस्पॉन्स टाइम्स ठीक नहीं है। तो ये मुझे नहीं मिला कोई भी फीडबैक, और ये आपके लिए शायद अच्छा प्लेजर सर, प्लेजर कि किसी भी पेरेंट से मुझे कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी बात नहीं आई। यही रीज़न था, और आपके साथ हम कनेक्टेड हैं, और यही वजह से आपको मैंने कोशिश किया कि आप ज़रूर एक बार दुआ आओ,
और मैं आपको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म दूंगा और कोशिश दिया भी एंड सर ने अभी जो आज का दिन है, मैंने सर को बोला कि सर आई एम कमिंग टू दोहा, जो स्टूडेंट है इनसे पहले जिनका इंटरव्यू हुआ उनका भी इंटरव्यू लेना है और आपका भी लेना है। सर ने बोला कि नहीं, आप दोहा आ रहे हैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए मत आइए, आप जो है टाइम आ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करके आ रहे हैं, तो जो भी पेरेंट्स है जो आपको पहले कांटेक्ट कर चुके हैं और इनके ग्रुप में बहुत बड़ा ग्रुप है सर का, सो आई थिंक सो आज का दिन पूरा हमारा बुकड है, कल का भी हमारा पूरा दिन बुकड है। तो हमको अभी ये टेंशन है कि हम लोग दोहा कब एक्सप्लोर करेंगे, बट वो उनका भी प्लान जो है वो सर ने बना के रखा है, तो हम वही सोच रहे थे कि कब कैसे करेंगे। बट उन्होंने जिस हिसाब से हमको सपोर्ट किया है, क्वारंटीन में थे हम लोग और खाने से लेके हमारे को चार्जर तक भी पहुंचाया है, तो ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ फैमिली, अभी पेरेंट्स नहीं, हमारे अभी एक फैमिली है। तो अभी हम लोग सर से पूछेंगे कि सर आप जैसे कि दोहा में थे और हम लोग अहमदाबाद में थे, कभी भी आपको सर्विसेज का ऐसे कुछ लैग लगा कि हमारी तरफ से कुछ भी आपको प्रॉब्लम पड़ रहा है या कुछ भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी से इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ पॉजिटिव और हर चीज़ निगेटिव नहीं होती, निगेटिविटी भी कुछ होती है। तो चूँकि आप एक कंसल्टेंट हैं और आप मिड प्लेयर हैं और हम मुझे और यूनिवर्सिटीज़ को बीच में जोड़ते हैं। हाँ जी सर। आपका काम सिर्फ कनेक्टिविटी का, जोड़ना का काम है। तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जिससे आप हमको जोड़ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम अगर ज़्यादा हो, हाँ, स्लो नहीं मिल पा रहा है उसका रिस्पॉन्स टाइम, तो हमारे पास वो नहीं पहुँचेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने फील की, जो हमारा बेटा गया था तो हम लोगों ने जो, अब ये जाहिर सी बात है कि ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फाइनेंस पे डिपेंड करता है, हम कहाँ भेज रहे हैं, कौन से कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं अपने पॉकेट के इलाज से। तो हम लोगों ने जो अपने पॉकेट के इलाज से जो चूज़ किया था यूनिवर्सिटी, तो वहाँ का अब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उनसे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। आपके साइड से रहा, आपके साइड से मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आपने अप्रोच नहीं किया उनको, लेकिन वो पर्टिकुलर मेरा ये कहना कि मैं आपको फिर वही जो फोनिक भी मैं कहता हूँ, अरबी कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर को, ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस ना करें जिनसे कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। तो इसके लिए ये चीज़ अगर आप लोग, और हाँ, अब जाहिर सी बात है कि बजटिंग का जो मामला है, बजट को देखते हुए वो चीज़ें अगर वहाँ पर जाहिर हो जाए कि हाँ देखिए सर ऐसी ये बजटिंग ठीक है, ये हम लोग चूज़ कर रहे हैं और इनका थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम जो है, चूँकि हम लोग उनसे ज़्यादा डील नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा डील नहीं किया है, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा हाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें थी जो वो, खैर वो भी शाउट आउट हो गया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन ट्रैक है, कोई भी चीज़। लेकिन मैं बार बार फिर वही कहूँगा, पेरेंट्स से ही कहूँगा मैं कि पेरेंट्स ज़रूर जागें, वो सोए ना रहें कि आपका जो दे दिया है कंसल्टेंट को, अब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ करता रहे। नहीं, ये आपको उनको जगाना पड़ेगा और आपको खुद भी जागना है कि ऑन टाइम वो चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही। अगर टाइम जा तो नहीं रहा है, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम गया, एक सेमेस्टर गया और पूरा हमारा वो चले जाएगा। क्योंकि जैसा फॉरेन में या यहाँ पे भी जो दो चीज़ें होती है, 2 सेमेस्टर है, एक विंटर है और एक समर है। बिल्कुल सर। हाँ, अगर एक आप लूज किए तो 6 महीने का गैप आपका। एग्जैक्टली। तो ये लूज करने का कोई भी ऑप्शंस नहीं छोड़ना है, लूप होल है, कुछ भी लूप होल नहीं छोड़ना है। और आप कनेक्टेड रहिए, ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहिए, बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी है आपको एज ए पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि पैसा दे दिए और ख़त्म हो गई बात। हाँ, पेरेंट्स का मतलब है कि बच्चों के कंधे पे हाथ रख के आपको चलना पड़ेगा, कि उनको एक फ्रेंड्स का सहारा देना पड़ेगा ताकि वो दूसरा कंधा ना तलाश करें। सही बात है, सही बात है, समझे? वेरी ट्रू, वेरी समझा। तो अपने पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स, आजकल का वो ज़माना नहीं है, पहले का वो ज़माना अलग था, डिफरेंट था। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत गैप था, लेकिन आप आज के डेट में तो वैसी चीज़ें हैं नहीं, गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, एकदम एंड लेवल पे जाके सपोर्ट करना पड़ेगा, हर एक तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और बस। ओके सर, जो आपके केस मैनेजर थे अमनप्रीत, जो मेरी वाइफ हैं, मतलब वो जो प्रीवियस आपके जो सन गए, बड़े वाले बेटे, उनको भी हेल्प कर रहे हैं, छोटे वाले बेटे को भी हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स में और जो आउफनामे प्रूफ होंगे उसके इन्विटेशंस में। तो उन्होंने स्पेशली पूछा है कि सर को पूछना कि अमनप्रीत का रिस्पांस कैसा था और उनका फीडबैक क्या है।
मैं तो आपसे बाद में शायद मिला हूँ या आपसे बाद में मेरी बातचीत शुरू हुई है। हाँ जी। पहले मैम से ही मैं मिला हूँ, शुरू से मैं मैम के कांटेक्ट में था और ऐसे सारे स्टाफ आपके अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उन सब में मैम का जो पोजीशन और टॉप ऑफ द टॉप है। बिल्कुल। हाँ, वो कहीं पे भी कुछ भी जितनी भी परेशानी आई, इवन उनके डैड भी पास्ड आउट हो गए, जो मुझे नहीं पता था, उस सिचुएशन पे भी मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया मुझे। हाँ, वो सिचुएशन कितना एम्बैरसिंग होता है, वो टाइम आप सब कोई जानते हैं, लेकिन उस दिन भी उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया। और उस दिन ये नहीं कहा कि मेरे डैड एक्सपायर कर गए, नहीं कहा उन्होंने। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जब आपका मैंने डीपी देखा है या उस पर लिखा है, तब मैंने फील किया। हाँ, तो मैंने फिर सॉरी के लिए फिर मैम को फोन भी किया था। हाँ, तो उन्होंने नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक होता है, वो तो है। तो ये चीजें हैं। और कभी भी हम लोगों ने नहीं फील किया कि अब एक लगता है कि एक फैमिली पार्ट है। बिल्कुल, ये नहीं कि मेरा बेटा चला गया वहाँ पे और वो उसको सपोर्ट मिल रहा है बहुत और हमने इतने सपोर्ट दिए यहाँ से दोहा से, ये कोई ये यहाँ का कोई मैटर नहीं। जब हमने कुछ भी नहीं था तब से वो सपोर्ट कर रही है हमें, और तब से हमारे क्वेरीज को 100% फुलफिल करने की कोशिश कर रही हैं। कभी इग्नोरेंस नहीं रहा उनका। और मैं जस्ट अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था इसी टॉपिक पे कि वहाँ से 11:30 बजे रात, 12 बजे रात को भी वो कॉल कर रही हैं मुझे। एग्जैक्टली। हाँ, रात के 12 बज रहा है इंडिया का टाइम और वो मुझे कॉल कर रही हैं। यहाँ का तो 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो उस वक्त भी वो नहीं लगा कि चलो अभी मैं सोने का वक्त है या फिर सैटरडे हो संडे हो, कोई ड्यूटी, कोई छुट्टी, कोई हॉलीडेज नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और वो सारे 365 डेज 360 डायरेक्टर 24/7 वो हाँ ऑन ड्यूटी हैं। और वो मैं उनके ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा वो टॉप ऑफ द टॉप है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम होता है, मैं बोल देता कि मुझे ऑफर लेटर ले आओ, मैं वीज़ा ला दूंगा, मेरा वीज़ा का मेन काम है। बट ऑफर लेटर लाने से लेके फिर ऑफर लेटर आ जाने के बाद जब स्टूडेंट उतर जाता है, फिर भी जो है उसकी और उसकी पूरी टीम की ड्यूटीज़ जो है वो चलती रहती है 1 साल तक। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो आप तो वीज़ा ला दिया, आपका वीज़ा हो गया, मतलब बोले सब यही बोलते हैं कि अमृतसर। मैंने बोला नहीं भाई, सब अब तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि हर इंटरव्यूअर में पेरेंट्स को पूछूंगा कि भाई अमनप्रीत का कैसा था। अभी वो जो पहले वाले मैम भी आए वो भी बोले थे कि भाई आप लकी हो कि आपको अमनप्रीत मिली। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब वही बोलते हैं कि भाई आप लकी हो, आपको अमनप्रीत मिली। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि वो भी लकी है, उसको अमृतपाल मिला, क्योंकि जोड़ी तो दोनों की है। तो सर, जब भी आपका पूरा एडमिशन्स हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, जब भी आपका वीज़ा वाला पार्ट आया, जब भी वीज़ा का फाइल एप्लीकेशन मेरे पास आया, मैंने आपका वीज़ा वाला प्रोसीजर आपका कितना था, कोई आपको उसमें लैग लगा, या आपका जो वीज़ा मिलने तक का आपको कैसा सर्विसेज आपको लगा? इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो परसेप्शंस था, जो इंडिया में रह कर के सोच रहे थे कि कतर जो वीज़ा सेंटर है या जर्मनी जो एम्बेसी है, वो एज ए इंडिया में, चूंकि इंडिया में इंटरव्यू डेट ही 3 महीने में आते हैं। 3 महीने में आते हैं, बिल्कुल। और इंटरव्यू का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है इंडिया में, जर्मनी का। बिल्कुल। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और मैंने आपको, चूंकि मेरे बड़े वाले बेटे भी जा चुके थे यहाँ से, इसलिए मुझे एक एक्सपीरियंस था उसका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे उस तरह की स्कैनिंग नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ होते हैं, वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको इन लोग आसानी के साथ अप्रूव कर देते हैं, जो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं। ये सबसे मेन फैक्टर होता है। तो इसलिए मुझे वो यकीन था कि वो वीज़ा जो है 10 दिन में उनका इंटरव्यू होगा और 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, जबकि आप लोगों ने 1 हफ्ते का इंटरव्यू प्रोसेस कराया था, ट्रेनिंग कराई थी 1 हफ्ते का। वो मेरा बेटा रोज़ाना जो है 1 घंटा आधा घंटा जो है वो डेली उधर से उन लोग करा रहे हैं ट्रेनिंग। दैट इज आवर ड्यूटी, वो हमारी ड्यूटी में आता है। 1 हफ्ता मुझे याद अच्छी तरह से। तो वो बेचारा ट्रेनिंग करने के बाद भी बोलता था कि भाईजान को तो इतना आसानी से हो गया, अभी मुझे हर रोज़ ट्रेनिंग प्रिपरेशन करना पड़ता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हम बोले नहीं, उनका प्रोसेस है, वो रहने दो, उसमें वो उनको जिस प्रोसेस से जा रहे हैं जाने दो। बिल्कुल। क्योंकि उनका वो रूटीन है, रूटीन के हिसाब से वो अपना चलेंगे। तो खैर, लेकिन हमारा इंटरव्यू भी बहुत आसानी से हुआ बच्चों का, और वीज़ा भी बहुत आसानी से आया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई बहुत। और यहाँ से वो लोग चले भी गए आसानी से। और इत्तेफाक हुआ, चूँकि हमारा एक सपोर्टिव हैंड वहाँ मेरा बड़ा बेटा था, तो हम लोगों ने प्रायर कोशिश की कि चलो उसके पास चला जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा देर एनवायरनमेंट रहेगा उसके साथ मिलके, एक नयापन उसको नहीं लगेगा कि नई कंट्री, नए लोग हैं। उसके दोस्त वहाँ थे जर्मनी में, तो वो अपने भाई के पास गया और अच्छा एक
महीना तकरीबन रहा उसके बाद, फिर वो शिफ्ट हो गया जहाँ उसे जाना था। बिल्कुल सर। तो सर आपको अमृतपाल विजन की जितनी भी सर्विसेज थी उसमें कभी आपको लैग या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, ये मैंने तो पहले भी कहा और अभी भी फिर भी रिपीट करूंगा कि ऐसी कोई सर्विसेज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और किसी तरह का कोई लूप्स होल मुझे नहीं दिखाई दिया है अभी तक, और ना ही फाइनेंशियल और ना ही आपका लीगल जो है, वो सारी चीज़ ऑन द ट्रैक है, ऑन स्पॉट है और अच्छी चीज़ें हैं। और मुझे कहीं पे भी कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं नज़र आई कि हाँ कभी मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत चूज़ किया। सही है। प्लेजर सर। और जो स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं जर्मनी के लिए सोच रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल और आज का जो सेशन है जो हम लोगों ने 2-3 रखा है, जो पेरेंट्स को इनवाइट किया है, उन सारे पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि सबसे पहले तो आप बच्चे की सलाहियत के हिसाब से आप जज करें। बिल्कुल सर। कि वो बच्चा चाहता क्या है, आप ज़बरदस्ती अपनी सोच उस पर ना डालें। वो बच्चा क्या रेंज रहा है उसका, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। आप वो बच्चा जाना चाह रहा है फाइनेंस की तरफ, आप उसको मेडिसिन में डाल रहे हैं, बच्चा कभी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा दिल से। तो आप जो बच्चा जिस जगह जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको मैक्सिमम, हाँ ठीक है, अच्छी और बुरी चीज़ उसको समझाइए कि बेटा इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, तुम्हें अगर नहीं दिखाई दे रही है तो ये बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट और चॉइस होना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, जाहिर सी बात है कि पॉकेट, आपका जो पॉकेट अलाउ करता है कि आप कहाँ तक अप्रोच कर सकते हो, वो पूरे 1 साल का नहीं, वो पूरे कोर्स कंप्लीट होने तक का वो आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि हर एक साल आपको जो फाइनेंस सपोर्ट करना है वो कहाँ से बीच में ब्रेक ना हो जाए। बिल्कुल। ये मेन फैक्टर होता है। ये तो जॉब किसी की भी जा सकती, किसी भी की, जॉब के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, कब तक किसकी कहाँ पे जॉब है, किसका रिस्क कहाँ लिखा है, नहीं कह सकते। लेकिन एक प्लानिंग के तहत आप करिए, और वो बच्चा अगर वो ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि अब्रॉड ही जाए, वो इंडिया अगर उसका अप्रोच है, इंडिया में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंडिया में भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए भी अप्रोच कीजिए, इंडिया में ही भेजिए। दूसरी जगह कनाडा, सिर्फ भीड़ जा रही है तो हम कनाडा के पीछे भाग जाएंगे, या जर्मनी जा रही है तो जर्मनी के पीछे हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जस्टिफाई कीजिए, पेरेंट्स खुद जस्टिफाई करें, और इसमें कोई जल्दबाजी ना करें कि हाँ एकदम रातों रात जर्मनी चले जाना, रातों रात कनाडा चले जाना, यूके चले जाना। उसको एक टाइम लीजिए। टाइम लेने का मतलब है कि आपको 8 स्टैंडर्ड से जागिए पेरेंट्स, ताकि आप वो बच्चा को माइंड सेट करते रहिए कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है और कितनी कैलिबर है, कितना, हर एक बच्चा यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल सर, सही बात है, परफेक्ट। उसकी एक अपनी पहचान है, उसकी एक अलग पहचान है, वो हर बच्चा और हर पेरेंट्स। तो मेरा यही है मैसेज कि किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना कीजिए। हाँ, कंसल्टेंसी लीजिए, आप पूछिए, कंसल्टेंट आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ज़बरदस्ती जर्मनी भेज दीजिए, ज़बरदस्ती यूके कनाडा भेज दीजिए। बच्चे को स्कैनिंग करवाइए। बिल्कुल, स्कैनिंग कराना जरूरी है। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है आज तक के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, सर ने बताया है, ये पेरेंट्स बिल्कुल ये ख्याल रखें कि आपका जहां मन करता है आप उधर मत भेजिए, जैसे कि कनाडा हो गया या जर्मनी हो गया या यूके हो गया या यूएस हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो काउंसलर होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं जर्मनी में पढ़ के आया हूँ, तो आई नो द थिंग्स, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है जर्मनी में। अभी जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं जर्मनी में स्टूडेंट कोलेज के लिए, कितने बार सारे बच्चे कि उनसे स्टूडेंट कोलेज का एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट तो भी वो यहाँ से B1 या वहाँ से जाके कर रहे हैं। बट पॉसिबल, हमारे पास तो रोज के इतने सारे केसेस आते हैं कि सर मैं जर्मनी में हूँ, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, बट मेरा स्टूडेंट कोलेज ही नहीं क्लियर हो रहा है, आउफना में ही नहीं क्लियर हो रहा है। तभी वो सब बच्चे वहाँ पर जाके स्टक हो गए। क्यों? क्योंकि सब जर्मनी जा रहे थे, वो भी जर्मनी गए, तो उन्होंने अपना कैलिबर को देखा ही नहीं है कि भाई मैं उधर जाके करूँगा क्या, मेरा मैथ स्ट्रांग है, मुझे जर्मन लैंग्वेज में मोटिवेशन है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सलाह सर ने दी है कि पहले आप स्क्रीन करिए, आप डिसाइड करिए कि कौन सी कंट्री, उस कंट्री का प्रोसेस क्या है वो आप समझिए, उसके बाद जो है वो आपको अप्रोच करना है उस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को या उस कंट्रीज़ के कंसल्टेंट को। एग्जैक्टली, राइट सर? जी जी बिल्कुल। ओके सर, आप हमारी कंपनी को अगर 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहे तो वो 5 वर्ड्स क्या होंगे? पिलर ऑफ सक्सेस जो कहा जाता है, सबसे टाइम जो फैक्टर है, कि ऑन टाइम है, प्रॉम्प्ट, जो कमिटमेंट और कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों पिलर ऑफ सक्सेस के लिए जो मानी जाती है,
तो ये सारी चीज़ें मैंने अमृतपाल विजन में पाया है। थैंक यू। और जितना भी मैंने कई बार मशवरा भी दिया सर को, आपको भी मैंने कई चीज़ों के बारे में मैंने कहा कि कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं तो उस वीडियोस को इस डायरेक्शन से होना चाहिए था, इस डायरेक्शन से होता तो ज़्यादा कुछ उसमें विजिबिलिटी होती और ज़्यादा परफेक्ट था, तो उसको आपने अप्रिशिएट किया। हाँ जी। तो मैं तो अभी जब से आया हूँ सर से पूछ रहा हूँ, सर ये ऐसा है, ये करना है हमने को, तो ही इज़ माई गाइड डेफिनेटली कि हम लोग चाहते हैं कि हमको कोई बताए, हम उनसे सीखें। ऐसा नहीं कि एवरीवन इज़ परफेक्ट। मैं जब से कतर में हूँ तो कुछ भी करना है तो आई एम आस्किंग हिम, कि मुझे पता है कि यहाँ से जो है, क्योंकि वो खुद इस पूरे सिचुएशन से जा चुके हैं, तो मेरे को बेस्ट एडवाइस वहाँ से ही मिलेगी। मेरी विशेष है हमेशा आपके लिए और आपके टीम के लिए और आपके ग्रुप के लिए कि आप लोग जिस तरह से, जिस पावर के साथ आप जुड़ रहे काम कर रहे हैं, ये पावर को टिल एंड रखिए। थैंक यू सर। समझा, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का थीम वहीं रहता है, उसके ऑब्जेक्ट्स वहीं रहते हैं, उसको ज़रा भी डैमेज ना होना पाए और वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, क्वालिटी हो, कमिटमेंट हो। ये सब चीज़ें, जो भी आगे का, जो भी फ्लैग, नेक्स्ट पर्सन जो भी फ्लैग लेगा, उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल संजय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का, आप अमृतपाल विजन को 1 out of 10 कितने में रैंक करेंगे? वे 1 is the worst and 10 is the best। 1 of the 100% तो कोई आइडियल नहीं होता। हाँ जी सर। 100% आइडियल अगर मैं आपको 10 मार्क्स दे रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं जितनी बातें बोला हूँ सब बेकार है। right। तो 100% फर्स्ट बार हमको जेन्युइन तो ये 100% नहीं होता। ऑटो 7.58 आपको मैं दे सकता हूँ। बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो आपको मैंने हाईलाइट्स किए हैं, वो आप उस पर अगर आप काम करें तो शायद वो 2 भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। जितने भी आपने सजेशंस दिए हैं इस पूरे ट्रिप पे और अपना जो भी रिलेशन रहा है लास्ट 1 ईयर का, डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे सिर्फ एक डिफ्रेंशिएटर चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे ये क्वेश्चन मैंने अमन को भी पूछा और जैसे कि इम्तिसाल से भी एक बार मेरी बात हुई थी जब भी हम लोग उसका इंटरव्यू ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक डिफरेंशिएटर जानना है, व्हाई अमृतपाल विजन एंड व्हाई नॉट द ओल्ड कंसल्टेंट। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने फर्स्ट वाले इसमें दिया है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि मैंने आपको फंड दे दिया, अब वो मैं आराम से सोऊंगा, सारी जिम्मेदारी जो है वो आप उठाएं और वो बोट को नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाएं। ये एक पेरेंट्स का जनरल थीम होता है, जो आउट ऑफ 100 हम नहीं बोलेंगे कि सारे पेरेंट्स जो हमारी सोच के होंगे, डिफरेंट सोच के होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि हमारी वाइफ टीचर है स्कूल में, तो मुझसे भी यही बतला हूँ कि आप अपनी सलाहियत के मुताबिक टीचर को बच्चों को मत पढ़ाइए, बच्चों की सलाहियत के मुताबिक अपने आप को डालिए। बिल्कुल सर। आपको वहाँ उस लेवल पे जाना पड़ेगा, बच्चा क्या सोच रहा है, यो पेरेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है, बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ बैठ जाइए। बिल्कुल। आप हाइट में खड़े होकर देखिएगा बच्चे को, तो जाहिर सी बात है कि आपको एप्पल कुछ और दिखेगा और बच्चा जो देख रहा है उसको एप्पल कुछ और दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप डाउन द अर्थ आके उस लेवल पे आ जाइए कि जो लीस्ट लेवल है उस लेवल पे आकर के अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अगर उनको कुछ मिलता तो उनके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, हर एक चीज़ उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी अगर वो उस लेवल पे आप सोच के उनको और सपोर्ट करेंगे तो। ट्रू सर, ट्रू, सही बात। तो अगर आप अपने लेवल से नहीं, मैं तो बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ये है, तो वो ख़राब हो जाता है। आप सोचिए कि उनके लेवल पे जाके पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता ड्यूटी आवर के बाद कि वो सारे पेरेंट्स जो है एक पावर के साथ में बच्चों के साथ जुड़े, क्योंकि उनका अपना फील्ड है, आते हैं, उनको एक रेस्ट टाइम चाहिए, तो वो रेस्ट टाइम आपके साइड से जो है उनको प्रोवाइडेड रहे। बिल्कुल, ताकि उनके लिए वो परेशानी का बात नहीं पड़ा कि ऑफिस से आए हैं, आज कंसल्टेंट से बात नहीं हुई, आज उन्होंने मैसेज किया था तो उनसे रिप्लाई नहीं किया, फिर वो आएंगे तो डायल करेंगे आपको डायल करेंगे, फिर वो अपडेट लेंगे। तो ये चीज़ें जो है, इस चीज़ों को आपकी तरफ से मुझे नहीं मिला है ये सब चीज़ें, लेकिन इस चीज़ों को मेंटेन करते रहिए जो आज आपका शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि डायरेक्ट आप पेरेंट्स से कनेक्ट रहिए, पेरेंट्स आपसे कनेक्ट करने का कम मौका मिले। कम है, मतलब
जो अप्रोच है वो एकदम इजी हो, कम्युनिकेशन एकदम इजी हो और पूरा जो अपडेशन है वो एकदम रहे। जी राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने हमको सिलेक्ट किया, हमको मौका दिया आपको सर्व करने का। एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। इम्तिसाल इज इन जर्मनी और हम लोग बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देंगे वंस उसका एक बार हमारा जो मेरा ड्रीम है कि उसको मेडिसिन की यूनिवर्सिटी में देना है और अभी हमको उस पर भी लगना है, एक बार वो स्टूडेंट कॉलेज में चले जाए तो सर। और सर थैंक यू फॉर होस्टिंग अस हियर इन दोहा। इट्स वेरी लवली टू कैच यू अप हियर। एंड हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे दोहा में लॉन्ग टर्म के लिए सर के साथ और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग धीरे धीरे आपको बताएंगे। ऑलवेज वेलकम है आपका। और कंप्लीट हमारे फ्रेंड्स जैसे शब्बीर भी हमारे एक फ्रेंड्स हैं, हाँ जो वो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, वो हमारे क्लाइंट है A1 A2 उन्होंने। और वो भी उसी तरह से हम उनके बच्चों को वैसे ही फील करते हैं कि वो हमारा ही बच्चा है। हमारा बेटा तो चलिए एक स्टेज पे आ गया है, ये नहीं बोल सकते कि वो सक्सेस है, लेकिन एक स्टेज पे आ गया। अब उसे सिर्फ पुशअप की जरूरत है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं हमारे, वो हम अपने बच्चों की तरह से उनको ट्रीट करते हैं कि भाई उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिले, उन तक भी वो, चाहे उनके पेरेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन हम जरिया बने उनके लिए। उन बच्चों को हम पुशअप करके वहां तक पहुंचाएं उनकी सलाहियत के मुताबिक। यही रीज़न है कि हम लोगों ने आपको बुलाया और आपको इनवाइट किया। और इसी तरह से आपको शायद पता भी है कि हम लोगों का एक एजुकेशनल ग्रुप भी है जो परवाज ग्रुप है। तो बस यही परवाज ग्रुप पे भी हम लोग सिर्फ फाइनेंशियली तो कुछ नहीं कर सकते, मोटिवेशनल सपोर्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं। बिल्कुल। मुझे कल शब्बीर जी का फ़ोन आया, वो मेरे को बोले, मैंने उनको बोला हेलो यस सर बताइए कैसे। बोले आपका अब मेरा नंबर सेव है। मैंने बोला आप सर हमारे क्लाइंट हो, आपका नंबर क्यों नहीं सेव होगा बताइए। तो बहुत उन्होंने भी हमको, अभी साथ में बैठे हैं सर, और बहुत उनका सपोर्ट रहा। कल भर के खाना आया था और इंडियन रोटी, कल परोठे जो है वो हमने 2 दिन के बाद का है। पहले हमको बड़ी रोटी जो थी उसका भी व्लॉग आने वाला है, वो हम लोग वीडियो में बताने वाला है। बहुत मज़ा आया, बहुत रोलर कोस्टर राइड थी क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ट्रैवल किया और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। सो गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है दोहा में। और पूरा जो व्लॉग होगा, ये इंटरव्यूज़ हम लोग जैसे ही अहमदाबाद इंडिया में पहुंचते हैं इसको हम लोग चढ़ाने वाले हैं। और आप मेरा जो चैनल है अमृतपाल विजन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम लोग लेंगे वर्ल्ड के हर कोने में जाके, जहाँ पर भी हमारे पेरेंट्स हैं। ये 2022 का हमारा थीम है, जो ईयरली थीम बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट होगा वहाँ पर जाके हम लोग पहुँचेंगे। सो सर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक्स।